Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 30th August and we are here with the Hindu analysis of 30th August, that is Wednesday. So अगर मेरी आवाज आ रही है, so just write in the comment section, yes sir, you're audible, so that we can start our session. Okay. So center slashes LPG price by rupees 200 ahead of poll season. So this we will be discussing about it. आवाज आ रही है मेरी? And there are some other important articles like when will you restore Jammu and Kashmir state? CGI asks centers. Then this is about Kaveri water management. I mean this is related with actually and that related with the dispute of Kaveri water and all. So just have an idea about it. आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? Okay. Yes. So let's start with this one. I hope you are aware of LPG cylinder. ये तो जानते हो क्या? सबके घर में होता है खाने के लिए, है ना, खाना पकाने के लिए. So basically, the government has decided to reduce 200 rupees the price of cylinder as a Raksha Bandhan gift. So I hope you are aware. I think today is Raksha Bandhan. Yes. The diesel will come in effective on Wednesday. यानी आज, है ना? Wednesday आज ही है ना? Yes. So that will be from today onwards. Okay. Yes. So that is what Union Petroleum and Natural Gas Ministry said. चलो आप ये बताओ कि Petroleum and Natural Gas Minister है कौन? Who is the Petroleum Minister of India? This is a homework. Go and find out. Okay. The next one is actually talking about a scheme. तो इसका question यहाँ question मैंने बना दिया इसको. What is the name of the scheme to provide free LPG cylinders to BPL women? Your options are 𝗟𝗏 योजना, 𝗟𝗲 योजना, pencil scheme, आयुष्मान भारत. What is the right answer to this question? जो फ्री एलपीजी सिलेंडर बांटना है, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वुमेन, ठीक है. Yes, I think Mr. 𝗟𝗲𝗴𝗹𝗀, yes, very good, is the petroleum minister. हाँ, एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करने के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन को जो प्रोवाइड किया गया तो उसमें उसके लिए स्कीम में मैंने पढ़ा है. देखो जब भी दो सिमिलर ऑप्शन होते हैं इसमें आंसर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है. देखो दिस इज रिलेटेड विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वुमेन ट्रैफिकिंग, तो कर्ब वुमेन ट्रैफिकिंग दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड. और ये है उज्ज्वल योजना. देखो बस ए का फर्क है, सो देयर इज ओनली वन ए डिफरेंस, ठीक है. सो दिस इज उज्ज्वल योजना एंड ऑल. सो जस्ट हैव एन आइडिया. देखो यहाँ लिखा हुआ भी होगा. So the beneficiary covered under Ujjwal Yojana will also get a further to be rupees 200 subsidy and all. So that is what you should be knowing it. ठीक है? हाँ. Ujjwal Yojana. So A is the right answer to this question. Okay. The next is when will you restore Jammu and Kashmir statehood? CGI asks center. Actually क्या हुआ था? I hope you are aware on 5th August 2019. So this Jammu and Kashmir state was partitioned into two union territory. Jammu Kashmir Union Territory and Ladakh Union Territory. So this is Ladakh Union Territory. This is Jammu and Kashmir Union Territory. ठीक है? Okay. The government had earlier said that yes, we will restore कि ये तो Union Territory रहेगा, but this we will restore it back to the state. So Jammu Kashmir will in future again turn back to the state. That is what the government had said. Okay. Yes. So that is what the CGI has asked. यही उन्होंने पूछा है, मतलब Solicitor General से कि आप पता करके बताओ. Ask the government that when actually this will be restored. So ये चीजें इसको just go and read it, है ना. अभी ये hearing चल रही है. Actually क्या था, primarily ये dialogue है. CGI साहब ने भी कहा था, देखो ये जो है ना, ये order नहीं पास किया गया. This is not a written order. These are dialogues which are actually made in articles form. Okay. So मतलब जो बातें होती है ना, तो जो lawyer कहते हैं या judge साहब कहते हैं, तो that is what actually is being made as an article. So these are actually the oral observation. Yes. So just have an idea about it. Article 37D and 35 capital A and all. Yes. So just have an idea. इसको थोड़ा सा मतलब देखते रहना, जब final judgment आएगा that will be important. But yes, overview एक reading just go through it, है ना. Just have an idea. Okay. Yes. हाँ. So the government has to make progress and all. तो ये सब चीजें है ना. So it has asked the Solicitor General, Attorney General. अच्छा कौन है Attorney General, कौन इंडिया के? Who is the Attorney General of India and who is the Solicitor General of India? बताइए तो बिना गूगल सर्च किए. Yes, Solicitor General is Mr. तुषार मेहता, right? Very good. क्योंकि यहाँ लिखा होगा उनका नाम, कहीं पे नाम लिखा हुआ है, कोई बात नहीं. And Attorney General is Mr. R. Venkatramani. R. Venkatramani. Okay. ठीक है. So just have an idea. Okay. Yes. हाँ. ये सब पता होना चाहिए. AG जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है.
but Solicitor General is not a constitutional post. Just have an idea about it. ठीक है? तो ये सब थोड़ा बेसिक आइडिया पूछते हैं एग्जाम में, एलेट वगैरह में कई बार. खैर, so Manipur House ends session in 48 minutes. ये तो एक ऐसी मतलब just go through it. So 60 member MLA, so SAT and से 48 minutes में complete हो गया session and all. Then ये वाला कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉलोइंग अ मीट ऑन ट्यूसडे डायरेक्टेड कर्नाटक टू इंश्योर 5000 cubic feet per second या क्यूसेक्स यूज कर रहे हैं वाटर टू बी रिलीज्ड एंड ऑल. तो देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो वाटर डिस्प्यूट कई बार होते हैं स्टेट्स में, जैसे दिस इज एक्चुअली द स्टेट ऑफ कर्नाटक, दिस इज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ठीक है, दिस इज तमिलनाडु, दिस इज कर्नाटका. ओके, नाउ हियर इज अ वेरी फेमस रिवर व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम कर्नाटक गोस टू तमिलनाडु. इस तरह कुछ है, इसका नाम है कावेरी. So we write something like this, कभी कभी ऐसे भी लिखाते हैं. ठीक है, so both are same thing, nothing to worry. ठीक है, फिर so इसमें dispute वगैरह चलता है कि between तमिलनाडु and कर्नाटक that yes release the water. अगर मान लो for example यहाँ पे डैम बना दिया गया तो यहाँ फिर पानी नहीं आएगा ना तमिलनाडु में, so dam will stop the water and all. So these types of disputes happen and all, so just have an idea about it. हाँ, yes non perennial भी होते हैं, मतलब इसमें वाटर थोड़ा कम होता है. yes, तो एक्चुअली 1 क्यूसेक कितना होता है, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 28.3 लीटर्स के आसपास होता है एक क्यूसेक. तो कितना क्यूसेक बताया जा रहा है, 5000 क्यूसेक. तो मल्टीप्लाई कर लेना लीटर्स में. ठीक है, सो इट विल बी 5000 इनटू जितना भी 28.317 जितना भी लीटर आएगा. सो इतना लीटर. एक्चुअली जनरली ये सब को क्यूसेक्स में ही जनरली वर्ड यूज करते हैं, जनरली वी यूज दिस वर्ड. ठीक है, खैर ओके. yes, before moving on guys, this is a test series. जो लोग टेस्ट ले रहे हैं सारा अटेम्प्ट करें, प्लीज अटेम्प्ट ऑल द टेस्ट, है ना. we have got to know that many people are not attempting, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. जो लोग टेस्ट लिए हैं और खास के पेड स्टूडेंट्स, पेड बैच वाले हो, पूरा अटेम्प्ट करें, टेस्ट छोड़े ना, है ना. तो प्लीज अटेम्प्ट ऑल द टेस्ट, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, एंड दिस इज अ 2024 क्रैश कोर्स एंड ये 2025 नेक्स्ट ईयर का कोर्स है. इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड फॉर नेक्स्ट ईयर कोर्स, ही और शी कैन गो फॉर इट. If you have any query, call on this number 9538895678 पे कॉल कर सकते हो. Okay, सबको लाइक बटन प्रेस कर दो guys. We are seeing only 8 likes, so 30 plus ले जाओ likes को. Okay, let's start with this one. Election Commission autonomy in the crosshair. तो autonomy का मतलब क्या होता है, एक तरह से independence, है ना. Independence कह लो, autonomy कह लो, means not it should not be influenced by anyone, है ना. Should not have any external influence. ये होता है ना autonomy, यानी कोई और इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सके. ओके, नाउ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देखो एक्चुअली क्या है. सो शी इज टॉकिंग अबाउट दिस. एक्चुअली एक रिसेंटली जजमेंट आया था. देखो होता क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 3 member बॉडी. यस, शायद आपको पता होगा. सो 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आते हैं. ठीक है, इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है. सो दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, on the advice of council of ministers. ठीक है, council of ministers मतलब वही प्राइम मिनिस्टर and other ministers, तो ऐसे जनरली ऐसे होता है. Okay, now so but recently on 2nd March the Supreme Court passed an order. ये वाले ऑर्डर आया था 2nd March को. This was called as historic and all. सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस तरह सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, like the director CBI director's appointment, very similar to that, this will be happening. क्या है वो, इसमें ये होगा कि the prime minister, there will be a committee और select committee भी कह सकते हो, which will be comprising of prime minister, the leader of opposition in Lok Sabha and chief justice of India. ठीक है, so they will recommend the name to the president कि who should be the next chief election commissioners या election commissioners के लिए. ठीक है, ऐसे होगा. ओके, तो तीनों के पास एक एक पावर होता है वोटिंग का, 1 वोटिंग राइट्स होता है. ऑल 3 आर इक्वल राइट्स. यही एग्जैक्टली सेम चीज होता है सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में. जब लोकपाल बिल बना था, यू रिमेंबर लोकपाल बिल, a lot of protest happened. उस वक्त शायद आप छोटे होंगे, but India against corruption movement happened in 2011 led by Anna Hazare. You remember? How many of you remember that? Anna Hazare, Mr. Arvind Kejriwal and other people were there. तो उसके बाद लोकपाल बिल बनाया गया, तो उसमें भी यही चीज लाई गई थी कि the CBI director will be appointed by a committee comprising of Prime Minister, Lok Sabha leader of opposition and Chief Justice of India. ठीक है, ओके. तो अब यही चीज यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से लाया गया. Now, but that is what is being talked about here. ठीक है, आर्टिकल 324 याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड. ओके, यस, हाँ कुछ लोग याद होगा, आप लोग छोटे होंगे, बट ना तो थोड़ा बहुत याद ही होगा ये प्रोटेस्ट वगैरह. So now the government has decided to come up with a bill
to change the order मतलब इसको थोड़ा सा change करने के लिए. Okay, so that is what the author is talking about. कि जो वो judgment आया था ये वाला, ये 5-0 था, 5-0, यानी पांचों जजेस ने एक साथ ये कहा कि yes, the committee should comprise of these 3 people. ठीक है. But recently the government has decided to come up with a law which will talks about high powered committee. यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, बट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर होंगे. मतलब ये कि ये तीनों रहेंगे, बस यहाँ पर इंस्टेड ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इट विल बी अ यूनियन मिनिस्टर. अब कौन से यूनियन मिनिस्टर होंगे ना, क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और एनी अदर मिनिस्टर. सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर कि विच यूनियन मिनिस्टर शुड बी हियर. ओके, okay, so that is what you should be knowing it. ठीक है. So bill seeks to replace the chief justice of India from high powered committee, meaning the committee will be comprising of prime minister, leader of opposition Lok Sabha and union cabinet minister to be nominated by prime minister. So basically the author is not very happy with this. Actually यही वो शायद बताना चाह रहे हैं कि it will autonomy in the cross here हो जाएगा. Means actually क्या देखो voting होता है ना, so means अगर prime minister है and the union minister both will be from the same party and all most likely. So फिर opposition will remain like this. तो ये वही बताना चाह रहे हैं. खैर, the government through this bill has taken Supreme Court head on making it clear that it wants greater weightage in the appointment. So that is what they are saying that this bill will make actually the government will have more advantage and all. यही सब बता रही, मैंने बता दिया जितना बताना था. ठीक है. नहीं, लॉ मिनिस्टर कोई जरूरी नहीं, कोई भी 3 लोग रहेंगे. According to this bill, the prime minister, leader of opposition Lok Sabha and any union minister, कोई भी एक union minister रह सकते हैं. It can be a law minister or it can be any other minister. ठीक है. ये कौन मिनिस्टर रहेंगे प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे ना. So the suggestion during Constituent Assembly debates was, अब देखो ये थोड़ा सा हिस्ट्री में जा रहे हैं author. So I think she is female if I'm not wrong. Author, yes. So she is actually going in history and she is talking about Constituent Assembly debate. यानी जब Constituent Assembly बन रहा था 1946 से 1950 के बीच था, उससे जो बात वगैरह हो रही थी 1949 and all, है ना. So actually chief election commissioner का appointment, there was some debate. Some people said कि chief election commissioner's appointment should be ratified by 2/3 majority in the parliament. यानी parliament bill approve करे कि हाँ ये chief election commissioner होंगे, वो भी 2/3 majority से. ये सभी बात हुई थी. However, parliament was interested with the charge of making appropriate laws on the matter. लेकिन बाद में कह दिया कि चलो parliament अपना कानून बना लेगी उसी हिसाब से. So we'll leave it. Okay. Then actually Dinesh Goswami Committee on Electoral Reforms set up by the then Prime Minister VP Singh in the 90s. ठीक है. उसके बाद ही बहुत सारी कमेटी बनाई गई. एक बहुत फेमस कमेटी है दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. ठीक है. देन एक सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बनाया गया था. 2 रिफॉर्म्स कमीशन बनाया गया है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन एंड सेकंड ARC. So सेकंड ARC के चेयरमैन कौन थे, कोई बता सकता है? Can anyone tell me who was the chairman of second ARC? Anyone? So basically second ARC also talked about it कि ECI should be appointed by through some collegium system. Collegium का मतलब ये यहाँ पर होता है कि जिसके पास जितने सारे मेंबर्स के पास इक्वल पावर है. जैसे ये वाला भी कॉन्सेप्ट है ना, ये इसको भी एक तरह से कॉलेजियम कह सकते हो. ये तीनों के पास all 3 have equal powers. ठीक है. तो then term collegium can be used. तो इस तरह की वो बात कहेगी. हाँ, yes, very good. सेकंड ARC के जो चेयरमैन थे वो थे वीरप्पा मोइली. Very good. Yes. Okay. Just have an idea. So in 2006 a suggestion was made by former chief election commissioner BB Tandon to the former president of India. उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे अच्छा उस टाइम पे CEC भी ऑफ, अच्छा बोथ वर इन ऑफिस. तो उस टाइम पे CEC जो थे BB टंडन थे एंड उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो APJ अब्दुल कलाम साहब थे. ठीक है. So the chief election commissioner gave suggestion to the president that there has to be a 7-member committee headed by prime minister should choose CEC and CEC. ठीक है. तो प्राइम मिनिस्टर एक 7 मेंबर कमेटी होनी चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए और बाकी 6 लोग होने चाहिए, वो लोग मिलके चूज करें. ये बीबी टंडन साहब का ओपिनियन था. ठीक है. उसमें कौन कौन है बाकी 6 लोग? तो दे आर लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, लॉ मिनिस्टर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय CJI. ठीक है. सो बीजेपी एट दैट टाइम सपोर्टेड द सजेशन. सो बीजेपी ने उस टाइम पर सपोर्ट किया था इस आइडिया को. ओके. देन बीजेपी जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अरुण जेटली, then he became the finance minister and all. Now he is no more. आपको पता होगा इनके बारे में, बहुत फेमस मिनिस्टर थे. So उन्होंने भी कहा था press release on CPM suggested electoral reforms in 2006 said any monitoring of election commission by government will be destructive for the independence. तो वो कोट कर रहे हैं उनको भी. Then in 2012 senior leader of BJP and former deputy prime minister so Mr. 𝗟𝗪 𝗿𝗂𝗏𝗀 also reiterated the idea of collegium
शुड बी फॉर्म विद प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन, उसमें सीजीआई भी होने चाहिए, लॉ मिनिस्टर भी होने चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा। सो मतलब बहुत सारे लोगों ने, मतलब ये बेसिकली ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि पास में बहुत सारे कमेटी ने, बहुत सारे सीनियर लीडर्स ने ये कहा है कि कोई कमेटी होनी चाहिए जिसमें मल्टीपल लोगों, किसी ने कहा 3 लोग, किसी ने कहा 7 लोग, किसी ने कहा 6 लोग, वो लोग रिकमेंड करें प्रेसिडेंट को। ओके, so many committees in the past, many senior leaders in the past have supported the idea that the chief election commissioners and election commissioners should be made by the president or should be appointed by the president on the recommendation of some committee, whether it would be a 3-member committee, 6-member committee, 5-member committee or something like that. ठीक है, so just have an idea about it. ठीक है, interestingly all these high level committees, experienced officers and even the BJP leaders saw the importance of this and all. तो ये बता रहे हैं कि पहले सारे लोगों ने सपोर्ट किया था इस आइडिया को and all. The effort was to curb it becoming a committed partisan and all. मतलब हाँ, देखो कमिटेड मतलब है कि किसी एक पार्टी की तरफ कमिटेड नहीं हो, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर शुड नॉट बी कमिटेड टू अ सर्टेन पार्टी। पार्टीसन मतलब झुके नहीं, एक तरफ नहीं हो, किसी एक पार्टी की तरफ नहीं हो। इट शुड बी नॉन पार्टीसन, should not have a biasness towards one party or the other, and incumbent friendly free, है ना। incumbent मतलब क्या होता है? रूलिंग गवर्नमेंट, मतलब किसी भी रूलिंग गवर्नमेंट के फ्रेंडली नहीं हो इलेक्शन कमीशन। इट शुड बी कंप्लीटली न्यूट्रल, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। सजेशन फॉर रिफॉर्म्स इन द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ ईसीआई केम फ्रॉम अपोजिशन पार्टीज व्हेन बीजेपी वाज वन ऑफ द वोकल पार्टीज। तो वही बता रहे हैं कि पहले बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था इस आइडिया को एंड ऑल। ठीक है, तो बस यही सब है इसमें, मतलब उन्होंने बेसिकली ये बताया है कि she wants ki yes, chief election commission should be appointed by some body and all, some committee which should have more than 3, 4, 5, 6 members। बस यही उनका आइडिया है। ठीक है, तो ये होपफुली आप समझ ही होंगे कि ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। नाउ नीचे में आर्टिकल देखो, इंडिया एंड द हर्डल ऑफ कन्विंसिंग द वोटर। देखो ये भी एक पॉलिटिकल ही आर्टिकल, इधर साइड वाली भी पॉलिटिकल थी, मैंने छोड़ दिया, ये वाली भी पॉलिटिकल है। बट एक जस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इंडिया अलायंस में दिस इज एन अपोजिशन अलायंस, 26 मेंबर अपोजिशन पार्टीज है। इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, शायद पूछ लें, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। सो दिस इज एन अलायंस ऑफ 26 ऑपोजिशन पार्टीज, ओके, जिसमें ऑलमोस्ट अराउंड 11 चीफ मिनिस्टर्स आर देयर। इनकम्बेंट मतलब बताए ना, जो करंटली इन पावर, करंटली इन पावर, उसको इनकम्बेंट कहते हैं। ठीक है, ओके, यस। सो टेकिंग ए क्यू फ्रॉम द कर्नाटक एंड ऑल। तो बस यही सब है, इसको ये पॉलिटिकल, इसमें क्या इतना डिटेल जाओगे। अगर आपको थोड़ा सा देखना है मतलब कौन कौन सी पार्टी शामिल है, जस्ट गो थ्रू इट, इसको रटना नहीं है, तो विकिपीडिया में जाके एक बार से देख लेना, लिस्ट ऑफ इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस मेंबर। तो इंडिया के मेंबर्स कौन कौन पार्टी है, तो जस्ट गो टू इट, और ऊपर से 1, 2, 3 में बस देख लो, उसको रटना नहीं है, एक आइडिया होना चाहिए। अगर मान लो पूछ दिया, ऐसे पॉलिटिकल आर्टिकल नहीं पूछना चाहिए, बट जस्ट हैव एन आइडिया। ओके, इसमें मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल जाने का कोई फायदा नहीं। ओके, यू कैन रीड बाय योर ओन इफ यू आर इंटरेस्टेड। साइड में आर्टिकल, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, इंडिया टू पुश फॉर स्मॉल बिजनेसेस। देखो सारा गेम जो होता है एमएसएमई का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यू अंडरस्टैंड। एमएसएमई स्टैंड्स फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। देखो, इफ इंडिया वांट्स टू अचीव इंक्लूसिव डेवलपमेंट, देन एमएसएमई नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड। छोटे लेवल के व्यापारी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसको अगर हम प्रमोट किया जाए, उनको सक्सेसफुल बनाया जाए, तो इंडिया एक इंक्लूसिव कंट्री बन जाएगा, जिसमें इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, गरीब को फायदा है ना। देखो बड़ी बिजनेसमैन तो काम करता है ठीक ठाक, मतलब इट्स फाइन, बट द स्मॉलर बिजनेस, एकदम जो छोटे लेवल का बिजनेस होता है, उसको प्रमोट करना मेन आइडिया होता है ना। सो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स ऑफ G20 मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट, 3 क्वार्टर्स एटसेट्रा एंड ऑल, कंक्लूडेड दैट डेलिब्रेशन अंडर इंडियाज प्रेजेंस, है ना। इंडिया प्रेसिडेंट है G20 का, सब तो पता ही होगा आपको। Comprehensive communique was curtailed as China and Russia blocked the reference to Ukraine and all. तो जैसे यूक्रेन की कुछ बात आई तो चाइना और रशिया ने उसको ब्लॉक कर दिया, so they blocked it, this they should not be talked and all. खैर, तो ये सब बात हो रही। The government put counted 5 concrete action-oriented deliverables from the meet, including a dialogue on global standard to bridge regulatory divergences across countries and committee and all for mutual recognition. So professional services related to medicine, law, nursing are related. So things have been discussed and all. Okay. So he is the Commerce Minister, Mr. 𝗟𝗃 𝗏𝗀. I hope you are aware. So he talked about 3 deliverables on new elements, है ना. So this is generic framework to map global value chains, essentially to identify weakest links and mitigate any shocks and all. Global value chain समझते हो ना, जो चेन होता है, supply chain, global supply chain, जैसे मान लो कोई कार बनना है, तो कार बनने के लिए क्या चाहिए,
टायर कोई और प्रोवाइड करेगा, देन व्हील कोई और प्रोवाइड करेगा, लाइट कोई और प्रोवाइड करेगा। सो सारा चेन होता है, फिर जाकर के आएगी कंपनी में, फिर सारा असेंबल होगा, देन कार बनेगा। सो दैट्स कॉल्ड एज चेन। आज की जितनी भी चीज बनती है वो कोई एक कंपनी नहीं बनाती। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट। वो पूरा चेन के साथ बनता है। टायर आया, उसके बाद व्हील बना, व्हील गया कार की कंपनी में, कार से यहाँ से लाइट्स आया, कहीं और से ग्लास आया, ठीक है, कहीं और से सीट आया, ठीक है। सो दैट इज द इंटायर चेन, है ना। तो एक्चुअली कहा जाता है कि जब कोविड वगैरह हुआ था, सो एक्चुअली द ग्लोबल सप्लाई चेन गॉट डिसरप्टेड एंड ऑल। सो ये सब चीजें है ना। डिजिटाइजेशन ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स, ईज फ्लो ऑफ, हाँ डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना सारे डिजिटलाइज कर दो, पेपर वर्क रिड्यूस कर दो। उससे फायदा क्या होगा? फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहना होगा। एक बंदा कहीं और है, एक बंदा कोई और शहर में, साइन कर देगा, चलो तुम भेज दो मेल, हम साइन करके दे देते हैं, ओके। अदरवाइज कागज वाला रहेगा तो साइन करने के लिए पेपर से साइन करो, तो वो डाक से भेजेगा, 2 दिन बाद फिर हो जाएगा, ठीक है। सो डिजिटाइजेशन विल मेक थिंग्स फास्टर, वेरी फास्टर, है ना। is welcome but the principle identified in the pact pertain to paperwork on transactions such as transport etc and all। वही है कि पेपर वर्क जो रेड टेपिज्म इसको कहते हैं, रिड्यूस द रेड टेपिज्म, है ना, इन ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल। फिर देखो जयपुर कॉल फॉर एक्शन फॉर इनहांस एमएसएमई एक्सेस। देखो यही मेन चीज मैंने बताया ना, एमएसएमई को इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द मेन थिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात भी करें ना कि दिस resonates with Prime Minister Modi plea that G20 strive to help MSMEs account for 60 to 70% of employment। तो 60 से 70% एम्प्लॉयमेंट यहीं पर आता है, 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। सो एमएसएमई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। देखो लिखा है एमएसएमईज आर ग्रोथ इंजन कंट्रीब्यूट टू 30% ऑफ जीडीपी। देखो ये सब है, जैसे मान लो कि ये हैंडलूम का काम हो रहा है ना, सिलाई मशीन हुआ, या वेजिटेबल बेचना हुआ, या शू मेकिंग हुआ, कॉटेज इंडस्ट्री हुआ, छोटा लेवल की जितनी इंडस्ट्री होती है, सब्जी बेच रहा है, ये भी एमएसएमई में आता है, ठीक है। सो इफ यू आर प्रमोटिंग दीज स्मॉल लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसमें बहुत इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता है, लेबर इंटेंसिव कहते हैं सब, ये सब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो इसमें क्या है, जॉब क्रिएशन बहुत अच्छे से होगा, ओके। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जॉब क्रिएशन। जैसे कई बार कहा जाता है, कॉन्सेप्ट होता है जॉबलेस ग्रोथ का, हैव यू हर्ड दिस टर्म? यानी जीडीपी ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन जॉब ही नहीं क्रिएशन हो रहा है। तो उसका सॉल्यूशन जो माना जाता है, उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन में एक माना जाता है कि एमएसएमईज, बिकॉज एमएसएमईज क्रिएट्स, दे आर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। जॉब क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तभी तो लोग खाएंगे, अर्न करेंगे, नॉल, यस। सो दैट इज व्हाई दीज आर एमएसएमईज। तो इसको प्रमोट करना जरूरी है, तो उसके लिए बहुत सारे स्मॉल लेवल लोन्स की बात होनी चाहिए, या और भी बहुत सारे स्कीम्स है कि कैसे इनको स्मॉल लेवल बिजनेस को प्रमोट किया जाए। नाउ इन विच आर्टिकल प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इज मेंशन्ड? मैंने पढ़ाया है आर्टिकल 44, 43, 40, 39 कैपिटल ए। बताइए सबको लाइक बटन प्रेस कर दो गाइस, वी आर सेइंग ओनली 14 लाइक्स, 30 प्लस ले जाओ लाइक्स। इन विच आर्टिकल प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इज मेंशन्ड? बताइए तो। Yes, the right answer is article 43, B is the right answer, yes। आप देख सकते हो आर्टिकल 40 जो है वो विलेज, ये पंचायत से रिलेटेड बात करते हैं ना, प्रमोशन ऑफ पंचायत। यस, मानो, एलोरा, दीक्षित, गौरी, यस, प्रिया चवन, हाँ, आलिया कौसर, गुड, हाँ। तो देखो लिविंग वेज फॉर वर्कर्स एंड ऑल, तो यहाँ पे लिखा है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड ऑल, है ना। सो ये डीपीएसपी है, मैंने पढ़ाया है। व्हाट इज डीपीएसपी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आई हैव टॉट, सो यू शुड बी नोइंग इट। यही बात हो रही है कि एमएसएमई प्रमोट करने से इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब्स एंड ऑल्सो दैट इज द मेन आइडिया। हमेशा याद रखना, जब भी बिजनेस इकोनॉमी प्रमोट करने में, खास के इंडिया में भी, एमएसएमई का प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट, ओके। गिग वर्कर्स बिल रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ठीक है। अब ये भी एक्चुअली गिग वर्कर भी शायद एमएसएमई का पार्ट आ सकता है। अब देखो गिग वर्कर्स क्या है, मैंने बताया जो टेम्पररी कंट्रैक्चुअल वर्कर्स, है ना, ये मैंने पढ़ाया है, टेम्पररी कंट्रैक्चुअल वर्कर्स। इसमें कुछ सारे डिबेट होता है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी रिसेंटली राजस्थान has come up with this bill to grant some protection to gig workers, ठीक है। so we could identify 4 major issues, but वो लोग author बता रहे हैं कि कुछ major issues हैं इससे related, तो चलो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेशन में इशू है इनके हिसाब से, कि जो गिग वर्कर का डेफिनेशन दिया गया ये पूरी तरह सही नहीं है, कंप्रिहेंसिव नहीं है। So the author is saying a person who performs work or participate in a work arrangement and earns from such activities outside of traditional employer-employee relationship, who works on a contract and results in a given rate of payment. So they have defined it as gig workers, ठीक है। Yes, yes, Gauri, very good, हाँ।
अब देखो इसमें ये बता ये रहे कि इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, इसलिए कि ये बहुत सारे ऐसी चीज है इस डेफिनेशन के हिसाब से जो गिग वर्कर्स के डेफिनेशन से आउट हो जाएगा। ओके, दिस डेफिनेशन है फार फ्रॉम क्लियर, यानी एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है, एंड बाइंडिंग द रेटरी टैक्स अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एंड ऑल। देखो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। So in fact whether a gig worker can be considered as an employee or an independent contractor is the issue। अब यही प्रॉब्लम होता है कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर माना जाए कि इसको एम्प्लॉय माना जाए, दोनों के लिए लॉज अलग होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर एंड ऑल। तो दिस इज एन इशू। जैसे फॉर एग्जांपल उबर का हम एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने एक कार खरीदी, स्विफ्ट डिजायर से खरीदा, एंड ही वांट्स टू यूज इट एज उबर चलाना चाहते, उबर ड्राइवर या उबर या ओला जो भी, ठीक है। अब क्या है कि ये जब कार चलाएंगे तो क्या होगा, तो इनको तो गाड़ी तो इनकी है ना, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, ये खुद से गाड़ी चला रहे हैं। दिस पर्सन इज ड्राइविंग। तो ओला उबर क्या होता है, तो सिर्फ कनेक्ट करता है ना, कि ऐप है, मोबाइल ऐप है, उससे आपको कनेक्ट हो जाएगा, कुछ परसेंटेज रखते हैं, 20-30% व्हाटएवर इट इज, सो दे सर्टेन परसेंटेज दे कीप, ओला और उबर की, रेस्ट आपके पास चलाता है। तो इसको एम्प्लॉयमेंट माना जाए कि नहीं, बिकॉज दिस विल बी कंसिडर्ड प्रैक्टिकली एज सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आपने अपना बिजनेस शुरू किया है, ओके, दिस विल कंसिडर्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, फ्रीलांसिंग में भी ये होता है कि भाई फ्रीलांसिंग है, कोई अगर ऑथर कहीं लिख रहा आर्टिकल किसी न्यूज़पेपर पे एंड ऑल, ओके, नाउ दिस इज फ्रीलांसिंग। तो अब ये क्या उसके लिए एम्प्लॉयड थोड़ी माना जाएगा ऑफिशियली। तो इसीलिए जैसे यूके के, इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर है कि उबर ड्राइवर्स मस्ट बी ट्रीटेड एज वर्कर, ये यूके के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है। तो इंडिया में तो नहीं चलेगा, उसके लिए अलग लॉ बनाना पड़ेगा, बट दैट इज व्हाट द ऑथर इज कोटिंग, है ना। So on the contrary, the Rajasthan bill adopts equivocal definition amendment for conflicting interpretation and all. That is what is being talked about. By not defining the gig workers as employees, the bill is limited in ability. तो वही बता रहे हैं कि employees को gig worker को employee नहीं define किया गया है, तो इससे जो है बिल पे कुछ limitations आ रहे हैं, मतलब वो और उसको comprehensive बनाया जाना चाहिए। तो ये सब बात कर रहे हैं। Then there are और भी बहुत सारे example दिया, अपना डिटेल नहीं जाना है। फिर जैसे सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है, तो क्या चीज से सोशल सिक्योरिटी में आएगा, क्या नहीं आएगा, ये एक इशू है, ओके। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट। मतलब जैसे होता है ना कि पीएफ है, पेंशन है, ये सब सोशल सिक्योरिटी में आता है, उसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया कि ये बता रहे हैं, ऑथर बता रहे हैं, फाइन। बस एक बेसिक आइडिया होती है, कॉस्ट ऑफ मील्स रोज बाय 65% इन 5 years, वेजेस बाय 37%। मतलब ये कि खाने का दाम 65% बढ़ गया है पिछले 5 सालों में, लेकिन वेज जो सैलरी है, इनकम है, वो सिर्फ 37% ही बढ़ा है, ओके ओके। So just have an idea, the cost of home cooked vegetarian thali in Mumbai has increased by 65% in last 5 years. At the same time, the average wage earned by casual workers living in a, तो ये सब जानना है, just have an idea about it, ठीक है, ओके। तो इसमें नंबर्स नंबर्स है दिया है कि कितना बढ़ा है और, so just have an idea, okay। Where do we find 9 dash lines? Your options are Indian Ocean, South China Sea, East China Sea, Pacific Ocean. What is the right answer? बताइए तो। And why I'm asking this question? Yes, South China Sea. Okay, दूसरा क्वेश्चन है, which is the largest producer of semiconductor? China, Taiwan, USA, Chile. What is the right answer? Largest producer of semiconductor. Yes, Taiwan is the right answer. देखो actually क्या होता है, India largest strong protest with China over new map of absurd claim, says minister. So actually क्या हुआ, क्या I hope you are aware, so China released a map जिसमें ये दिखा रहे कि एक्साइड चीन, अरुणाचल प्रदेश, even Taiwan and the region, this region, the South China Sea, जो islands है, सब चाइना का पार्ट है। So that is why we hit back and the government has answered it कि and all. India on Tuesday lodged a strong protest with China over the publication of new map released by Chinese government on Monday showing Arunachal, Aksai, Chin and all. ठीक है, so just have an idea. PM मोदी, शी जिनपिंग shake hands, great each other. तो प्रॉब्लम क्या है कि अभी जैसे ही मुलाकात हुई, उसी के कुछ दिन बाद, तो कभी ब्रिक्स समिट हुई, यहाँ मुलाकात हुई, अब कुछ दिन बाद ये है G20 समिट होगी 10 सितंबर 9-10 सितंबर को, यहाँ पर भी मौजूद रहेंगे और यहाँ पे भी, अब बीच में मैप रिलीज कर दिया। So that is why the timing is being questioned a lot
you are releasing the when BRICS meeting has happened, most likely in G20 also, because China and India both will be present. तो हो सकता है वहां पे भी मुलाकात हो, something like that. And this map has been released in the midst. So that is what is being questioned and all. Okay, so Mr. S. Jaishankar has answered it. It said it's an absurd claim and all. Okay, so this is our territory and all. That is what is being talked about. ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा पढ़ लेना अपने से. Now this is the question: which element has been recently detected by Pragyan rover? Your options are hydrogen, nitrogen, sulfur, cobalt. What is the right answer to this question? बताइए तो. Yes, the right answer is option C. Sulfur is the right answer. Yes, Manu, Priya, Chavan, Manu, you all are right. C is the right answer. Yes. Pragyan confirms sulfur near south pole of moon search on for hydrogen. ठीक है. अच्छा, which of the following has found sulfur on the moon? बताइए आंसर. CHAST, 𝗟𝗄, LIBS या अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बताइए. किसने फाइंड आउट किया? केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फर, बस एस, यही है केमिकल फॉर्मूला. यस, लिप्स ने किया. सी इज द राइट आंसर. ठीक है. नंबर ऑफ ताप इज राइट एंड यस, बस एक ही बच्चे ने आंसर किया सही. ओके, सो प्रज्ञान रोवर ऑफ चंद्रयान 3 फाउंड सल्फर. ठीक है. LIBS laser induced breakdown spectroscopy instrument aboard the rover has made the first in situ measurement on the element and all. ठीक है. So LIBS की वजह से फाइंड आउट किया. देखो LIBS यहाँ भी लिखा है, scientific technical lines composition of materials. और क्या, primarily analysis unveiled aluminum, sulfur, calcium, iron, chromium, titanium, ये सारी चीजें. And then other revealed manganese, silicon, oxygen. देखो यही फायदा. अब हाइड्रोजन की तलाश में. Why हाइड्रोजन they are searching? अगर हाइड्रोजन से बहुत फायदा होता है, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाए तो शायद वाटर वगैरह की प्रेजेंस हो. ठीक है. और हाइड्रोजन के पास बहुत सारे ऐसे खुसूसियत होती है जो और एलिमेंट में नहीं होता है. सो दैट इज व्हाई दे आर सर्चिंग फॉर हाइड्रोजन एज वेल. नाउ देखो कुछ चीज जान लो. लैंडर के पास ये एलिमेंट है, इसको पढ़ लेना, नहीं तो आप पेलोड्स जो होता है ना, लैंडर है, लैंडर में चास्ट है, 𝗟𝗄 है और LP है. ये तीनों है, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा. इसका क्या काम है, बिकॉज मे बी दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन. ठीक है. ये लैंडर के पास है और रोवर के पास ये दो है. APXS है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, और लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है, लिप्स है. ठीक है. तो यही इसी ने फाइंड आउट किया. ये बोल रहे हो ना. ठीक है. तो जस्ट हैव एन आइडिया. ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना, बिकॉज दैट कैन बी हेल्पफुल एंड ऑल. हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन चंद्रयान 1 वाज लॉन्च्ड? कल मैंने पूछा था इसरो के चेयरमैन, आज ये पूछ दिया. मिस्टर मनमोहन सिंह, AB वाजपेयी, IK गुजराल, HD देवेगौड़ा. व्हाट इज द राइट आंसर? हाँ, इससे पहले वाला विकिपीडिया पेज था, उसमें मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा. टोटल कितने पेलोड से, एक बार जस्ट गो एंड रीड इट. हाँ, चंद्रयान 1 में हु वाज द इसरो चेयरमैन, एक ये पता करना है. एंड उस टाइम पे मैंने बता दिया था यस्टरडे. चंद्रयान 2 में हु वाज द इसरो चेयरमैन, ये भी बता दिया. ठीक है. देन चंद्रयान 1 में हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यस, मनमोहन सिंह. सो 2008 में आया था ना, सो मनमोहन सिंह वाज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2004 to 14. ठीक है. सो ए इज द राइट आंसर. HD देवेगौड़ा लिख रहे हैं बच्चे, नहीं, ए इज द राइट आंसर. 2008 में था ना, सो ही वाज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2004 to 14. ठीक है. ए इज द राइट आंसर. ठीक है. ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट, है ना. एक और, पाकिस्तान कोर्ट सस्पेंड्स इमरान खान सेंटेंस इन तोशाखाना ग्राफ्ट केस. ग्राफ्ट मतलब होता है करप्शन चार्जेस, करप्शन केस. ओके. ठीक है. तोशाखाना, इसे मैंने बताया है, गिफ्ट से रिलेटेड जो होता है, गिफ्ट वगैरह मिलते हैं एंड ऑल. सो एक्चुअली केवल लोअर कोर्ट ने इनको सेंटेंस दिया था, बट इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैज एक्चुअली stayed the sentence. But still he will be in jail. तो लिखा he will continue to remain in jail in a separate case. कोई और भी मामले हैं उसमें भी सजा हुई है. So he will remain in the jail. Okay? So just have an idea about it. एक just basic idea होना चाहिए. More than, yes, this is an sorry news. More than 1,000 schools destroyed in Ukraine since war began, says UNICEF. UNICEF का पहला नाम था United Nation International Children's Emergency Fund. Now it is called as United Nation Children's Fund only. ठीक है. अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोई बता सकता है? It is of course a UN से specialized agency, है ना, concerned about children and all. तो जब wars हुए तो 1,000 स्कूल डिस्ट्रॉय हो गए हैं. 1300 यहाँ लिखा हुआ अंदर, तो more than 1300 schools.
तो यहाँ पर है here is India, this is US, यहाँ पर न्यूयॉर्क है। ओके, here is the headquarter of UNICEF। ठीक है, UN का भी हेडक्वार्टर यही है। ठीक है, न्यूयॉर्क में। मॉनसून वोस मतलब परेशानी, पेन में लिफ्ट फूड प्राइसेस। मैंने बताया कि मॉनसून इज नॉट वेरी गुड बिकॉज ऑफ एल नीनो, ये सब मैंने बताया है, इसीलिए हो सकता है खाने का दाम बढ़ जाए। तो हेयर एल नीनो हैपेंस है ना, यहाँ पे एल नीनो आता है जिसके कारण द साउथ वेस्ट मॉनसून गेट्स वीकेंड एंड ऑल। ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया। और उसके वजह से when there is less monsoon, लिखा है 32% बिलो एवरेज है, so the when monsoon will be less, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल गो डाउन ऑफ कोर्स, तो फिर फार्मर्स पर असर पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट इट इज। बिकॉज लगभग 50% जो इंडिया में एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है वो रेनफेड होती है, आधे के आसपास रेनफेड यानी बारिश के भरोसे होती है। ठीक है, बाकी 50% में आप इरिगेशन वगैरह कर लो, हर जगह इरिगेशन नहीं किया सकता है ना, इरिगेशन करने में बहुत पानी खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर्ड होती है, हर फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आसपास में कैनाल होना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर होना चाहिए, बहुत सारी चीजें, तो प्राइमरीली बहुत हद तक वो लोग रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं ना, सो दिस इज एन इशू। हाँ, एल नीनो हैज एक्चुअली नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द साउथ वेस्ट मॉनसून। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास, है ना। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और सबको लाइक बटन प्रेस कर दो, 30+ लाइक्स ले जाओ, है ना। सो थैंक यू एवरीवन। Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.